بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ دہلی عالمی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ G20 سمٹ شروع ہو چکا ہے اور دہلی ڈکلیریشن جاری کیا گیا ہے، جسے انڈیا کی بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ اس ڈکلیریشن میں یوکرین کے بارے میں کھل کر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ افریقہ کے ملک موراکو میں طاقتور زلزلہ آیا ہے، جس سے بھاری تباہی مچی ہے۔ ان خبروں کی تفصیل جانیں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ موراکو میں طاقتور زلزلہ، 1000 ہلاک، سینکڑوں زخمی، عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئیں، تاریخی مقامات کو بھی نقصان۔ مراکش شہر زلزلے کا مرکز، دہشت زدہ لوگوں نے کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری، بڑے پیمانے پر امدادی کام جاری۔ یہ دور جنگوں کا نہیں ہے، نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال یا دھمکی قابل قبول نہیں، اتفاق رائے سے G20 ڈکلیریشن جاری، انڈیا کی بڑی کامیابی۔ انڈیا کی تجویز پر افریقن یونین کو G20 میں شامل کر لیا گیا۔ افریقی ملکوں نے کہا طاقتور تنظیم میں شامل ہونے سے نئی آواز ملی ہے۔ دنیا اعتماد کی کمی کو اعتماد میں تبدیل کرے، مستقبل کی نسلوں کے لیے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، G20 سمٹ سے مودی کا خطاب۔ مودی کی G20 سمٹ کے موقع پر کئی لیڈرز سے ملاقاتیں، عالمی لیڈرز کے لیے راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ کا ڈنر۔ لبنان کے ریفیوجی کیمپ میں پھر جھڑپیں، 4 فلسطینی ہلاک، کئی زخمی۔ امریکہ کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے آرمینیا کا احتجاج، ماسکو میں سفیر کو طلب کیا گیا۔ آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو کرپشن کیس میں گرفتار، احتجاج پر لوکیش اور کئی لیڈرز حراست میں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں موراکو کے زلزلے کی۔ نارتھ افریقہ کے ملک موراکو میں ایک طاقتور زلزلے سے 1000 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ زلزلہ مراکش شہر کے قریب آیا، جس کی شدت 6.8 ناپی گئی۔ 1000 کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زلزلے سے ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ یہ زلزلہ مراکش شہر سے 71 کلومیٹر دور پہاڑیوں میں پایا گیا۔ زلزلے کی گہرائی 18.5 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 11:11 پر آیا، جب کئی لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے بعد بھی کئی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ زلزلے کے اور جھٹکے آ سکتے ہیں۔ کئی ویڈیو کلپ سامنے آئے ہیں جن میں عمارتوں کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دھول میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقے میں مصروف ہیں۔ کئی علاقوں تک پہنچنے میں انہیں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ کئی لوگ اپنے پیاروں کو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں۔ ایسے کئی لوگوں کو کرشمے کی امید ہے کہ ان کے رشتہ دار ملبے سے زندہ بچ کر نکل آئیں گے۔ مرنے والوں کی تعداد اور بڑھ سکتی ہے۔ مراکش شہر کی آبادی 8,84,000 ہے۔ شہر کی تاریخی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جو 12ویں صدی میں بنائی گئی تھی۔ US جیولوجیکل سروے نے بتایا کہ یہ زلزلہ نارتھ افریقہ میں آنے والا 120 سال کا سب سے طاقتور زلزلہ ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ زلزلے کے بعد صورتحال سے نمٹنے میں موراکو کی مدد کے لیے تیار ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ ہم ریسکیو ٹیموں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے موراکو کے زلزلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں بائیڈن نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी जलजले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी हमदर्दियां मोरक्को के अवाम के साथ है और उन्होंने कहा कि वो जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं और इंडिया मुश्किल के इस वक्त मोरक्को की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। तुर्की ने कहा कि वो मोरक्को की मदद के लिए तैयार है। जरूरत पड़ने पर भेजने के लिए 265 टीमें तैयार रखी गई हैं। हाल ही में तुर्की और सीरिया को ऐसे ही एक जलजले से निपटना पड़ा था। मराकश शहर में सैकड़ों लोग लंबी लंबी लाइनों में ठहर कर ब्लड डोनेशंस दे रहे हैं ताकि जख्मियों की जान बचाई जा सके। कई आलमी लीडर्स ने जलजले पर अफसोस का इजहार किया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम मुश्किल के इस लम्हे में हमारे मोरक्को के भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइल ने मोरक्को को इमदादी टीम भेजने का ऐलान किया है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जिन मुल्कों ने इसराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड के साथ ताल्लुकात कायम किए थे उनमें मोरक्को भी शामिल है। जलजले की वजह से मोरक्को के शहर में इंटरनेट कट गया है और बिजली चली गई है। मकामी लोगों ने बताया कि हमने एक वहशतनाक रात गुजारी है। जलजले के बाद कई लोग सो नहीं सके और खुले मैदान में रात गुजारी। कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि औरतें, बच्चे, बूढ़े खुले आसमान के नीचे दहशत के आलम में बैठे हुए हैं। तारीखी इमारतों और दीवारों की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। अब बात करते हैं G20 की। G20 समिट के मौके पर दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया है जिसमें यूक्रेन जंग रोकने पर जोर दिया गया है और फूड सिक्योरिटी बहाल करने के लिए भी अपील की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया और कहा कि रुकन मुल्कों में इत्तेफाक राय पाया गया है। उन्होंने दिल्ली के भारत मंडपम में समिट के दूसरे सेशन से खिताब करते हुए कहा कि एक अच्छी खबर है कि हमारी टीमों की मेहनत से एक इत्तेफाक राय हुआ है। ये मेरी तजवीज़ थी कि G20 डिक्लेरेशन मंजूर किया जाए। इसमें कहा गया कि ये दौर जंगों का नहीं है। इस मौके पर हमारे वजीरों, शेरपा और तमाम ओहदेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से इस डिक्लेरेशन को मुमकिन बनाया। G20 डिक्लेरेशन में रशिया और यूक्रेन से कहा गया कि वो किसी रोक टोक के बगैर अनाज, खुराक और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई को यकीनी बनाएं। बयान में मालियाती मंडियों को बचाने पर भी जोर दिया गया। इस बात से भी इत्तेफाक किया गया कि माहौलियात की हिफाजत की कोशिशों को बढ़ाना चाहिए। इससे पहले इंडिया ने G20 मुल्कों में एक नया मुसव्वदा तकसीम किया जिसमें यूक्रेन जंग का जिक्र किया गया। इस डिक्लेरेशन की मंजूरी को इंडिया की अहम कामयाबी समझा जा रहा है। इंडिया के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि दिल्ली डिक्लेरेशन के तमाम 83 पैराग्राफ पर 100% इत्तेफाक पाया गया। उन्होंने कहा कि हर मुल्क ने ग्रीन डेवलपमेंट की तायद की। G20 डिक्लेरेशन में कहा गया कि आज का दौर जंगों का नहीं है। यह भी कहा गया कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी नाकाबिल कबूल है। बयान में यूक्रेन में जंग की वजह से इंसानी तकलीफों और जंग के बुरे असरात का हवाला दिया गया। खासतौर पर फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, महंगाई और तरक्की पर असरात का जिक्र किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया अरसे में कई बार इस जुमले का इस्तेमाल किया था कि आज का दौर जंगों का नहीं है और इस बयान को G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन में शामिल किया गया। अफ्रीकन यूनियन को इंडिया की तजवीज़ पर G20 का मुस्तकिल रुकन बना दिया गया। हफ्ते की सुबह नई दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ज़मीन के उन्वान से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया की G20 सदारत सबका साथ सबका विकास की अलामत बन गई है। इंडिया न सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी इस उसूल पर अमल करता है या करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ये अवाम का G20 प्रोग्राम बन गया है क्योंकि करोड़ों इंडियंस इससे जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज इंडिया दुनिया से कह रहा है कि वो एतमाद की कमी को एतमाद और भरोसे में तब्दील करे। उन्होंने ये बात मानी कि यूक्रेन जंग की वजह से एतमाद की कमी मुतासिर हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सब मिलकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि चाहे ग़िज़ा हो, फ्यूल हो या दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, सेहत, एनर्जी या पानी की सलामती, मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए हमें ठोस हल निकालने चाहिए। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना
एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, मान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। कीनिया के सदर ने कहा कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने से अफ्रीका का फायदा होगा और अफ्रीका को एक आवाज मिलेगी। अफ्रीकन यूनियन कमीशन के चीफ मूसा मोहम्मद ने कहा कि इससे आलमी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरे की वजह बनने वाले मसाइल को हल करना चाहिए। वो G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर खिताब कर रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का मुस्तकिल रुकन बनाने से ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत होगी। 1999 में G20 ग्रुप बनाया गया था, तब से इस बाअसर ग्रुप का ये पहला फैलाव है। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी दुनिया को एक नई समझ देने के लिए एक अहम वक्त है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया कोविड-19 को हरा सकती है तो जंग की वजह से पैदा एतमाद की कमी के मसले पर भी काबू पा सकती है। वज़ीर आज़म मोदी ने बरतानिया, जापान, जर्मनी और इटली के लीडर्स से आपसी मुलाकातें की। उन्होंने जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि इंडिया की G20 सदारत के दौरान उन्होंने आपसी ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाया है। एक दिन पहले वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर जो बाइडेन और दूसरे आलमी लीडर से मुलाकातें की थी। वज़ीर आज़म इतवार को फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन और कनाडा के लीडर्स से मुलाकातें करेंगे। वो तुर्की, UAE, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय कमीशन, ब्राज़ील और नाइजीरिया के लीडर से भी मुलाकातें कर रहे हैं। 18वीं G20 कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर जो बाइडेन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ और दूसरों का खुद इस्तकबाल किया। UAE के वज़ीर माजिद अल सुएबी ने एक आलमी आवाज़ की हैसियत से इंडिया की अहमियत जताई और कहा कि UAE और इंडिया के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। उन्होंने इंडिया के G20 दौर की यानी सदारत के दौर की तारीफ की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते की रात G20 लीडर्स की डिनर पर मेज़बानी की। G20 लीडर्स और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स भी इस डिनर में शरीक हुए। वज़ीर आज़म मोदी ने G20 में अपनी तकरीरों के दौरान इंडिया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि भारत लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया। हाल ही में जब से इंडिया इत्तेहाद अपोजिशन का बना है, बीजेपी और हुकूमत इंडिया के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ भारत इस्तेमाल कर रही है और ऐसे अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि मोदी हुकूमत इंडिया का नाम बदलकर भारत रखना चाहती है। चाइना ने 2026 में G20 छोटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी अमेरिका में करने की मुखालिफत की। चाइना के सदर शी जिनपिंग G20 समिट में खुद शरीक नहीं हुए। उनकी जगह चाइना के वज़ीर आज़म ली कीqiang G20 समिट में शरीक हुए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी G20 समिट में शिरकत नहीं की। उनकी जगह रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव ने शिरकत की। समझा जा रहा है कि चाइना और रशिया G20 की अहमियत को घटाना चाहते हैं और उसकी जगह ब्रिक्स को बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने भी G20 समिट में हिस्सा लिया। G20 समिट में यह तासुर पाया गया कि मुल्कों के दरमियान बहरानों से दुनिया की तरक्की मुतासर हो रही है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि इंडिया ट्रेड डील को यकीनी बनाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। चाइना के थिंक टैंक ने कहा कि इंडिया अपने खुद के एजेंडे के लिए G20 को सबूताज कर रहा है। चाइना के वज़ीर आज़म ली कीqiang ने कहा कि G20 मुल्कों को आलमी मईशत की बहाली के लिए काम करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने अनाज की डील बहाल न करने के लिए रशिया पर तनकीद की है। सदर यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स माइकल ने अपनी तकरीर में कहा कि अनाज की डील न होने की वजह से कमज़ोर मुल्कों की मुश्किलों में इजाफा हुआ है।
اب دیکھتے ہیں G20 سے ہٹ کر کچھ خبریں۔ رشیا نے ماسکو میں آرمینیا کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ جنگی مشقوں کے اعلان پر احتجاج کیا ہے۔ 3 دن پہلے آرمینیا نے کہا تھا کہ وہ آنے والے ہفتے میں امریکہ کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کرے گا۔ لبنان کے قریب ایک ریفیوجی کیمپ میں پھر سے جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان جھڑپوں میں 4 فلسطینی ہلاک ہوئے اور 20 زخمی ہوئے۔ آخری خبریں ملنے تک 2 دن کی جھڑپوں کے بعد سیز فائر سے اتفاق کیا گیا۔ حالیہ عرصے میں لبنان کے فلسطینی ریفیوجی کیمپس میں ایسی کئی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ تیلگو دیشم پارٹی کے چیف چندر بابو نائیڈو کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اے پی پولیس نے بتایا کہ سابق چیف منسٹر کو سی آئی ڈی نے صبح 6 بجے نندیال کے ایک فنکشن ہال سے گرفتار کیا۔ چندر بابو نائیڈو کو دی گئی نوٹس میں ڈی ایس پی سی آئی ڈی معاشی جرائم نے کہا کہ یہ ناقابل ضمانت جرم ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے کئی لیڈرز کو، جن میں چندر بابو نائیڈو کے بیٹے اور پارٹی جنرل سیکریٹری لوکیش بھی شامل ہیں، گرفتاری کے خلاف احتجاج کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ لوکیش اپنے والد کی گرفتاری کے بعد پد یاترا کر رہے تھے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ پولیس لوکیش کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے اور کرپشن کے معاملات میں ان کے رول کی بھی چھان بین ہو رہی ہے۔ اس دوران چندر بابو نائیڈو کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بے قصور ہیں اور ریاستی پولیس انہیں نشانہ بنا رہی ہے کیونکہ وہ عام لوگوں کے مسائل اٹھا رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ موراکو میں طاقتور زلزلہ، 1000 ہلاک، سینکڑوں زخمی، عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئیں، تاریخی مقامات کو بھی نقصان۔ مراکش شہر زلزلے کا مرکز، دہشت زدہ لوگوں نے کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری، بڑے پیمانے پر امدادی کام جاری۔ یہ دور جنگوں کا نہیں ہے، نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال یا دھمکی قابل قبول نہیں، اتفاق رائے سے G20 ڈکلریشن جاری، انڈیا کی بڑی کامیابی۔ انڈیا کی تجویز پر افریقن یونین کو G20 میں شامل کر لیا گیا۔ افریقی ملکوں نے کہا طاقتور تنظیم میں شامل ہونے سے نئی آواز ملی ہے۔ دنیا اعتماد کی کمی کو اعتماد میں تبدیل کرے، مستقبل کی نسلوں کے لیے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، G20 سمٹ سے مودی کا خطاب۔ مودی کی G20 سمٹ کے موقع پر کئی لیڈرز سے ملاقاتیں، عالمی لیڈرز کے لیے راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ کا ڈنر۔ لبنان کے ریفیوجی کیمپ میں پھر جھڑپیں، 4 فلسطینی ہلاک، کئی زخمی۔ امریکہ کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے آرمینیا کا احتجاج، ماسکو میں سفیر کو طلب کیا گیا۔ آندھرا پردیش میں چندر بابو نائیڈو کرپشن کیس میں گرفتار، احتجاج پر لوکیش اور کئی لیڈرز حراست میں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔